Hello students, it's third video of this chapter, rational numbers. Today you will learn how to represent rational numbers on the number line. Representation of rational numbers on the number line. Okay. Now first we will learn about natural numbers. How to represent natural numbers on the number line. Okay. Natural numbers. Now see, you know the definition of natural numbers. Natural numbers start from 1. देखिए 1, 2, 3, 4 like this. The line extends, you can see the line extends infinitely only to the right side of 1, right side of 1, right side of 1, right side of 1. Okay, you will not get any number left of 1. Okay, this line will start from 1. Now next is whole numbers. Whole numbers. Whole numbers, for whole numbers you will start from 0. Okay, the line extends for whole numbers, line extends infinity to the right of 0, right of 0. Okay, there are no number to the left of 0, you can see, because natural numbers start from 1. If we include 0 to the set of natural numbers, you will find the whole numbers. Okay, like this. Third is integers. In case of integers, suppose here 1, 2, in left hand side -1, -2. In case of integers, the line extends infinitely on both the sides. Here left hand side and right hand side. Okay, the main thing is these are the integers. Okay, integers 0, natural numbers and negative of natural numbers. Okay, by the definition. You can see here, in case of natural numbers, whole numbers, integers, if I say represent 1/2, तो आप ये देखेंगे कि 2/3, 2 and 3 के बीच में कोई नंबर आपको यहाँ दिख रहा है? इधर 1 या 2 के बीच में कोई नंबर दिख रहा है? इधर 0 या 1 के बीच में कोई नंबर आपको दिख रहा है? नहीं. तो आज हमें जो स्टडी करनी है वो इस तरीके के नंबर्स को करनी है, जैसे 1/2. ये कैसे नंबर है? p/q के फॉर्म में हमने लिखा है. नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, p and q इज नॉट इक्वल टू 0. इस टाइप के नंबर्स हम लोग जो है आज रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे. उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ओके, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो आज हमें सीखना है. देखिए, अब हम सीखेंगे इसको. Suppose I am going to draw 1/2 on the number line. Same question here, 0, 1, -1. Okay, this line extends infinitely on both the sides. Okay, 1/2. For 1/2, which is halfway between 0 and 1, has been labeled as 1/2. मीन्स आपको क्या करना है? 0 से 1 के 2 इक्वल पार्ट करने हैं, एक पार्ट और ये एक पार्ट. ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट्स हमें करने हैं. तो जो आपको ये नंबर मिलेगा मिडिल में, ये होगा 1/2. इट इज लेबल्ड एज 1/2. ओके, सपोज you have to represent 1/8 on the number line. Then in case of 1/8, now write 0, 1, here -1 and so on. Okay,
In case of 1 by 8, the number line may be divided into 8 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. The number line may be divided into 8 equal parts. देखिए, अगर 0 to 1 हम नंबर लिखते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 1 by 8 है, तो आप इसको देखिए, ये क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर है. देखिए एक मिनट, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है तो ये क्या है, डिनोमिनेटर, और ये क्या है, न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर जितना होता है उतना हम लोग यहाँ पार्ट करते हैं. ठीक है, सो वी डिवाइडेड दिस 0 to 1 इन 8 इक्वल पार्ट्स, इसलिए हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, अब क्या करना होता है, जो फर्स्ट पार्ट आपको मिला 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 7 तक कर लीजिए, ये 8th पार्ट अपने आप आ जाएगा. ठीक है, तो ये 8 इक्वल पार्ट्स हैं. ये इधर आपको थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन वो आप इग्नोर कर दीजिए. आप ये समझ लीजिए ये इक्वल पार्ट्स हैं, ये जो बेर्थ है इनकी वो इक्वल है. ठीक है, ओके, ये इक्वल बेर्थ है, ये इक्वल बेर्थ है. ओके, ये सब. तो द फर्स्ट नंबर हमने काउंटिंग जो लिखी है इसको हम लिखेंगे 1 by 8. दिस इज द 1 by 8th पार्ट. इट्स 2 by 8, 3 by 8, लाइक दिस. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज लेबल्ड एज 1 by 8, सेकेंड इज 2 by 8, थर्ड इज 3 by 8 एंड सो ऑन 7 by 8, लाइक दिस. क्लियर. अब देखिए इसी कंसेप्ट का यूज करके अब हम क्या करने वाले हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन इज 7 by 4 represent these numbers on the number line. First 7 by 4. Okay, 7 by 4 means 1. ये आप देख रहे ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, तो अब हमने इसको कैसे लिख लिया, 4 बन जा 4, 3 by 4 ऐसे लिख सकते हैं ना. देखिए 4 बन जा 4 प्लस 3 7 by 4 हो गया ना, मतलब 1 and 3 by 4 है. तो अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखिए नंबर लाइन, सपोज हियर इट्स 0, इट्स 1 एंड इट्स 2 एंड सो ऑन. इन लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3 ऐसे ऑन. 1 and 3 by 4, 1 and 3 by 4 means 0 to 1, 1 and 3 by 4, मतलब this number lies between, this number is greater than 1 and less than 2. देखिए 1 and 3 by 4 है ना, तो 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में इसको लाई करना चाहिए. अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में आपने 8 देखा तो इसके 8 पार्ट्स किए. अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, 4, तो आप इसके 4 पार्ट्स कर लीजिए, 1, 2, 3. ओके, 1, 2, 3 मीन्स 1, 2, 3. अब देखिए 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट्स हो गए. 1, 2, 3, 4. फर्स्ट पार्ट इज लेबल्ड एज 1, 2, 3 और ये क्या है 4, 4 और 4 ऐसे लिख दीजिए. तो आपको क्या चाहिए, 1 and 3 by 4 मीन्स ये जो पार्ट है, ये नंबर है, इसको हम लोग बोलेंगे ये कितना है, 7 by 4. ये नंबर आपका आ गया 7 by 4, 1 and 7 by 4. क्योंकि 1 by 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो पॉइंट है इसका क्या मतलब है, 1 तो है ही और इसमें 1 by 4 और ऐड हो रहा है. ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, मतलब फिर ये 1 and 1 by 4 बन रहा है. समझ में आ गई बात. अब 1 के बाद 1 by 4 है इसमें. ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा. अब देखिए तो मैं आपको ये सारे नंबर दिखा दूं एक बार. 1 + 1 by 4 मतलब क्या हुआ, 1 + 1 by 4 मतलब हुआ, आप एलसीएम लेंगे तो 4, तो 4 + 1 तो ये कितना हो जाएगा 5 by 4, ये कितना हो जाएगा 6 by 4, ये कितना हो जाएगा 7 by 4. तो ये 1 and 3 by 4 है ये. ठीक है ना, इसको आप समझ गए. अब देखिए ये सेकेंड वाला जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, -5 by 6. तो आप देखिए ये नंबर है 0, इधर है 1, ऐसे चलते जाइए. इधर क्या है -1 ऐसे. अब आप ये मत सोचिए कि 0 ये 1 लिखा हुआ है, 0 -1 के बीच में, ये
ये वाला इसके इक्वल नहीं है, ये इक्वल ही है, ठीक है ना। ये आपको इसमें ऐसे दिख रहा है क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा ऐसा हो गया है, लेकिन ये गैप इक्वल है 0 से -1 और 0 से 1 का, ठीक है। अब देखिए क्या रिप्रेजेंट करना है आपको, 5/6 -5/6 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो -5/6 ये नंबर 0 के लेफ्ट में आएगा, नेगेटिव है। -5/6 का मतलब क्या हुआ, देखिए -5/6 का मतलब क्या है, -5/6 का मतलब ये देखिए डिनोमिनेटर कितना है 6, यानी कि आपको इसके 6 पार्ट्स करने होंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार हटा दूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये 0 से -1 के कितने पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 तक आपने कर दिया तो 6 हो गए अपने आप। फर्स्ट मार्क इज लेबल्ड एज -1, दिस इज -2 -3 -4 -5, ओके, -2 -3 -4 -5, ओके, और डिनोमिनेटर में 6 इस तरीके से लिख दिया। 3 4 5 ये कितना होगा 5, यानी ये हो गया 6, ओके। तो ये जो नंबर है, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, -5/6, ओके। आपको रिप्रेजेंट करना आ गया। देखिए ये 1 है, ये कितना होगा, ये वाला अगर मैं लिखना चाहूँ तो -2/6, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ लिखा हुआ है -3/6, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, -4/6, इसको लिखना चाहूँ तो क्या है, -5/6, समझ गए ना आप। अब देखिए रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए फर्स्ट आप ड्रॉ करिए 0 -1 इधर, और इसको, ये लाइन भी सीधा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक, और ये है 1। तो ये मैंने जब देखा माइनस का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये 0 से लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, और 0 और -1 के बीच में ये नंबर आने वाले हैं सारे, क्योंकि कोई भी नंबर, ये सब प्रॉपर हैं, ठीक है ना, 0 और -1 के बीच में आएंगे, ठीक है ना। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 0 और 1 के बीच में इधर लाई करता है, लेकिन इसमें क्या है, ये मतलब ये नेगेटिव साइन है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ये वैल्यू जो है इनकी 0 और -1 के बीच में आएगी, ठीक है ना। इसका देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो ये 0 -1 के बीच में आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो देखिए इसका मतलब अब आप ये बोलेंगे कि -2/11 को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा क्या कह रहा है 11, तो इसका मतलब इसके हमें 11 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनका जो गैप है वो भी इक्वल है, ये सब इक्वल गैप है, ठीक है ना, ये इक्वल गैप है ये। अब आप ये कंफ्यूज मत हो ना इसमें, ये सब इक्वल गैप है। तो देखिए फर्स्ट नंबर को आप क्या लिखेंगे, -1, ये -2, ये -3 -4, ये क्या होगा -5 -6, ये क्या होगा -7 -8, और ये क्या होगा -9, ऐसे हो गया, ठीक है। तो -2, अब ये क्या है, 0 11 पार्ट्स किए ना, तो ये होगा -1/11, ये होगा -2/11, ये होगा -3/11 -4/11 -5/11 -7/11 हो गया, ये -9/11। तो आपको जो नंबर मिल गया, आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करना, -2/11, तो ये आपको नंबर एक मिल गया -2/11, -5/11 ये मिल गया, ठीक है ना, ये नंबर है -5/11, और -9/11 आपको ये नंबर मिल गया -9/11, ठीक है। आप पता चल गया नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। अब देखिए लिख रहा है 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2, तो कितने नंबर्स होते हैं स्मॉलर देन 2, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, मतलब बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स, और इसमें तो लेस देन 2 बोला है, तो इसमें तो लिमिट ही नहीं है, काउंटलेस नंबर्स हैं। स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2 मीन्स स्मॉलर देन 2, जरा देखिए स्मॉलर देन 2 का मतलब क्या है, 0 इधर 1 है, इधर 2 है, मतलब वो ये कह रहा है स्मॉलर देन 2, मतलब इधर वाले नंबर्स लिखने हैं सारे। स्मॉलर देन 2 क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ये लीजिए 5 लिखने तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। ये स्मॉलर देन 2 हमने नंबर लिख दिया, मतलब आप जरूरी नहीं यही वाले लिखें,
जितने भी नंबर लेफ्ट साइड में है 2 से लेफ्ट में, वो सारे इससे स्मॉलर है। ठीक है, अब देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब इसमें 2/3 और 4/5 में हमें ओनली 5 रेशनल नंबर चाहिए, जबकि इसमें कितने नंबर्स हैं? काउंटलेस नंबर्स आर देयर, काउंटलेस नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने लिखा, देखिए 2/3 एंड 4/5। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर इनको इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे पहला काम यही करना है। इसमें 3 का कर दिया, तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 10/15, और ये कितना हो गया, 12/15। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 5 रेशनल नंबर्स आपको चाहिए, तो आप क्या करिए, आप इसमें ये कर दीजिए, आप इसमें 5 रेशनल नंबर चाहिए ना आपको, आप चलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 30, 45, और ये कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 45। तो देखिए 30 के बाद क्या आता है 31, फिर क्या आता है 32, 33, 34, 35, और इसमें डिनोमिनेटर कितना है 45, 45, 45, 45 और 45। देखिए तो ये नंबर्स इसके बीच में आ गए। हो सकता है आंसर शीट में आपके यहाँ 60 लिखा हो, ठीक है ना। 60 क्यों लिखा होगा, 60 इसके लिए लिखा होगा क्योंकि आपको क्या करना है, जब आप इसको करेंगे, अगर मान लीजिए अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देता, इधर जैसे मैंने यहाँ 3 का किया ना, यहाँ देखिए यहाँ 3 का किया ना, तो मैं 4 का कर सकता था, क्योंकि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 60 हो सकता है। अभी मैंने आपसे बोला ना इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो वो जरूरी नहीं कि आपका जो है आंसर इसमें मैच करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरीके से आ गया, ठीक। और इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, सपोज यही ले लेते हैं, चलो सेकेंड वाला है। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है, -3/2 एंड 5/3। मैंने अभी अभी आपको बताया था इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं 2 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया। 2 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 3 से करेंगे तो 3 1 1, 2 × 3 6 आएगा। यानी कि इधर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, ठीक है। तो कितना हो गया, -9/6, और ये कितना हो गया 10/6। ओके, देखिए कितना आसान है, -9 और 10/6 से चाहिए, तो 10 से अगर आप छोटा नंबर लेंगे तो क्या आएगा 9, ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए उसके बाद क्या लेंगे 8 लेंगे, मान लीजिए इधर से अगर मैं नंबर लेना शुरू करूं तो कितना लूंगा 8/7, मतलब -9/6 से मैं बड़ा नंबर ले रहा हूं, और 10/6 से छोटा नंबर मुझे चाहिए, ठीक है ना। और आप 0 भी बीच में ही आएगा, देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नंबर, तो बीच में 0 आएगा, और अपॉन में कितना है 6 6 6 6 6, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई -6/6 भी तो आएगा, उसके बाद -5/6 भी आएगा, इधर से 7/6 भी आएगा। तो मैंने अभी आपको बोला ना यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो कितने भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ये 6th क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, बोलता है 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो ग्रेटर देन -2 की जब बात हो रही है तो आपको जानते हैं ग्रेटर देन -2 में कितने नंबर आएंगे। ग्रेटर देन -2 में देखिए, ग्रेटर देन -2 का मतलब हुआ कितना, देखिए ये है -2 -1 0, इधर होगा 1, इधर होगा 2। -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर क्या होगा, मतलब -2 से हमें किधर जाना है, इस साइड में जाना है। भाई अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको
स्मॉल नंबर्स मिलेंगे, और अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको ग्रेटर नंबर मिलेंगे। तो -2 से ग्रेटर क्या हुआ? -1, 0, 1, 2, 3, जितने नंबर चाहे लिख दीजिए, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। ओके, अब देखिए ये 7th क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन में? इसमें वो ये बोलता है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3/5 एंड 3/4, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, देन मल्टीप्लाइड बाई 4। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर था उससे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका जो डिनोमिनेटर है उससे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। 12/20, और इधर देखिए कितना होगा? 15/20। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब अगर मैं लिखूं 12 के बाद क्या था? 13, 14 और उसके बाद 15, यानी कि 2 ही नंबर हमें मिलना है इसके बीच में। तो हमने क्या किया, ऐसा करते हैं, आप क्या करिए, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर सेम चीज का मल्टीप्लाई अगर आप इस नंबर में करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इधर भी आपने क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई अब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसका नहीं तो क्या होगा, अगर आप सेम चीज का नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर अभी हमने इक्वल किया था, अब डिनोमिनेटर फिर बदल जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। 96 हो गया, और ये कितना हो गया? 160, और ये कितना हो गया? 120, और ये कितना हो गया? 160। ओके, तो आप जानते हैं 97 से आप शुरू कर दीजिए। 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सारे नंबर हो गए, अपॉन 160, 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 ये लीजिए। अगर मैं आगे लिख दूं 107, 108, 109, सारे नंबर्स अभी अभी मैंने आपको बोला था ना, देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, तो इसलिए ये हो सकता है। अब एक कंफ्यूजन था बच्चों को, जरा मैं वो आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने कल लिया था, लास्ट वीडियो में देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। एक ये एक्सरसाइज 1 था, इसमें ये कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए आपने किया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें ए की तो वैल्यू ये है, बी ये है, सी ये है, ऐसे नहीं है भाई। देखिए ए अपनी जगह पे है, ठीक है, यहाँ हो गया। तो अब क्या हुआ, ये 2 नंबर्स को हमने क्या किया है, आगे पीछे किया है। मतलब अब हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, ए ये बन गया और बी ये बन गया। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम इधर ले गए और इसको इधर ले आए, ठीक है ना, इंटरचेंज इसका प्लेस कर दिया। ठीक, बात आपको समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई थी। ओके, ये आप अच्छे तरीके से एक बार नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।